यूपीएससी हमसे 2024 में पूछता है। स्टेटमेंट वन, सिंडिकेटेड lending spread the risk of lower default across multiple lenders. The syndicated loan can be fixed amount lump sum of fund cannot be क्रेडिट लाइन। भाई मुझे ये दोनों ही स्टेटमेंट नहीं पता, सिंडिकेटेड लैंडिंग और सिंडिकेटेड लोन। Why is the why is the offering teaser loan by commercial banks a cause of economic concern? Teaser loan are considered to be aspect of such prime lending and banks may expose Indian bank may expose to risk of defaulter in future. In India, teaser loan mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up, या तो वन होगा या फिर डी होगा टीजर लोन वाले का। 80 का 11 पे। A teaser loan is considered to be an aspect of subprime lender and bank may be exposed to the risk of defaulter in future। अब देखते हैं। What is the purpose of intercreditor? What is the purpose of intercreditor agreement signed by Indian banks and financial institute countries? Intercreditor देखते हैं। Aim to faster resolution, ये कार्य से हटाओ। मुझे 50 करोड़ to support infrastructure and central to lesson to the government of India to lesson to government of India perennial burden on fiscal deficit and current account deficit. The act to independent regulator का ऑप्शन ए होगा या डी होगा? हाँ तो गलत बोला लेकिन मैंने 74 का डी है, मैं ये गलत करता। The establishment of Panchayat Payment Bank is being allowed in India to promote financial inclusion. Which of the following statement is correct? In mobile phone companies, supermarket chains that are owned by controlled by residents and are eligible eligible to promoter of payment bank। ठीक है, सिंपल सी लाइन है ये। सुपरमार्केट चेन पेमेंट बैंक कैन यूज बोथ। नहीं, अब सेकंड बता दो। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटी। देखो, एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं, कि ये ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, नहीं वो तुम्हारा पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री एक दूसरे को क्रेडिट कर रहा है। पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। भाई अगर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड करेगा और ऊपर से ऑप्शन ये ऑप्शन थ्री बोल रहा है पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज, इसका आंसर बी है। बी आंसर है इसका। थैंक यू, है ना। अब कुछ चीजें आगे यहाँ पर पढ़ लेते हैं। दिस इज जनरली टू डिफिकल्ट सच फैक्चुअल क्वेश्चन अपॉन क्वेश्चन ऑन लॉजिक। To tackle such question in exam hall, please refer to the point Vidyashastra notes section. In syndicated loan, a group of lenders called a syndicate collectively provide a large loan to a single borrower. This structure distributes the credit risk among all participating lenders. Each lender is exposed to only a portion of total loan, thereby reducing individual risk in case of borrower इसमें सिंडिकेटेड के बारे में लोन क्या बोल रहा है कि भाई ग्रुप ऑफ लैंडर मिलके एक बंदे को जैसे जैसे 20 5 जैसे 10 लोग आए, उन्होंने 10 10 रुपए जोड़े और 100 रुपए किसी बड़े लेंडर को दे दिया। अगर कल को वो बड़े बोरोवर को दे दिया, कल को अगर वो बोरोवर डिफॉल्ट करता है कि भैया मैं नहीं दे पा रहा लोन,
तो भाई किसी को 100 रुपये, तो सबको 10-10 रुपये का नुकसान होगा आपके यहाँ। एक्सपोज ऑनली पोर्शन, ठीक है। बस देखते हैं। सिंडिकेटिंग, द सिंडिकेटिंग लोन लैंडिंग स्प्रेड दैट इज बोरोवर डिफॉल्ट, ठीक है, पहले वाला ठीक है। Syndicated loan can be structured as term loan, fixed lump sum, a revolving credit facility, so it can be credit line, and this is common in corporate financing. Syndicated loan can be fixed amount, lump sum of funds cannot be fixed a credit line. ये मेरी समझ में नहीं आई। इसमें लिखा हुआ है syndicated loan can be structured is structured as a term loan, fixed lump sum, or a revolving credit facility credit line. So it can be a credit line and this is common in corporate financing. इसको समझाओ सरल भाषा में। सिंडिकेटेड लोन एक ऐसा लोन होता है जो कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलकर प्रोवाइड करते हैं, जो एक सिंगल बोरोवर को दिया जाता है। इसमें लिखा गया है कि सिंडिकेटेड लोन को दो तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है। टर्म लोन, इसमें बोरोवर को एक फिक्स अमाउंट एक ही बार में दिया जाता है और बोरोवर को उस अमाउंट को जो फिक्स पीरियड में रिपे करना पड़ता है। इस लोन का इस लोन का रीपेमेंट शेड्यूल पहले पहले से सेट होता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन, इसमें बोरोवर को एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है जिसमें वो बार बार यूज कर सकता है। जैसे कि वो पैसा रीपे करता है, वैसे वो उसे दोबारा उस अमाउंट को बोरो कर सकता है। जब तक क्रेडिट लिमिट के अंदर हो तो लोन फ्लेक्सिबल होता है और बोरोवर बार बार पैसा बोरो बोरो करने की सुविधा देता है। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में सिंडिकेटेड लोन, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में जब कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ फंड की जरूरत होती है तो वो एक सिंडिकेटेड लोन के लिए अप्रोच करती है। इसमें मल्टीपल बैंक मिलकर लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो सके और कंपनी को रिक्वायर्ड फंड मिल सके। ये लोन कंपनी के लिए फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट ऑप्शन होता है, खास करके जब उसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फंडिंग की जरूरत होती है। और इसमें लिखा है सिंडिकेटेड लोन कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज अ टर्म लोन, फिक्स्ड लम सम। टर्म लोन मतलब वही पढ़ लिया, है ना, और रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी क्रेडिट लाइन। So it can be credit line, and is common in corporate financing. अब इसमें ऑप्शन क्या था? सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड लमसम, गलत है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, ठीक है। और सिंडिकेटेड लोन होता है जब काफी सारे नए बैंक या लोग मिलकर लोन किसी को बांटते हैं। को लैंडिंग मॉडल, CLM, co-lending model aims to enhance credit flow to unserved and undeserved sectors by leveraging the competitive disadvantage of both bank and non-banking financial companies. Co-lending model aims to enhance credit flow to unserved and undeserved sectors by leveraging the comparative advantage of both bank and non-banking financial companies। ये जरा समझाना। अभी आपको
Co-lending model aim to enhance aims to enhance credit flow to unserved and undeserved sectors by leveraging comparative advantage of both banks and non-banking financial companies. इसे समझाओ। को लैंडिंग मॉडल का मकसद है कि क्रेडिट फ्लो को इन सेक्टर तक पहुंचाया जा सके जभी तक जहां अभी तक फाइनेंशियल सर्विस दूर है, जैसे कि अनडिजर्व और अंडर सर्व्ड एंड अनबैंक्ड सेक्टर। इस मॉडल में बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का कोलैबोरेशन होता है, जिसमें दोनों कोऑपरेटिव एडवांटेज को यूटिलाइज किया जाता है। समझने के लिए बैंक का रोल। बैंक के पास बड़ा कैपिटल बेस होता है, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को अच्छे से फॉलो करते हैं, इसलिए उनका रोल प्राइमरी रिस्क मैनेजमेंट और लार्ज स्केल फाइनेंसिंग में होता है। नॉन 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 बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो कॉम्प्लेक्स कस्टमर नीड को समझकर पर्सनलाइज लोन प्रोजेक्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। इनके पास कस्टमर की लोकल नीड को समझने की कैपेबिलिटी भी होती है, जो बैंक के लिए मुश्किल है। को लैंडिंग के का क्या फ़ायदा? क्रेडिट फ्लो को इन्हेंस करा जाता है। रिस्क शेयर को कम शेयर करने से दोनों एंटिटी का फायदा होता है, जिसमें एनबीएफसी ज़्यादा रिस्की कस्टमर को हैंडल कर सकती है, जबकि बैंक उनको सिक्योर फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से को लैंडिंग मॉडल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलता है और क्रेडिट एक्सेस इन सेक्टर तक पहुंचाया जाता है जिन्होंने अभी तक फाइनेंशियल सर्विस को यूज नहीं किया। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा कलाकारी तो है नहीं। फ्रेमवर्क पार्टनरशिप। बैंक आर परमिटेड टू को लैंड frame partnership. Banks are permitted to co-lend with all registered NBFCs, including housing finance companies, based on prior prior agreement. Loan sharing. NBFC required to retain minimum 20% of share of the individual land on their books, while remaining 80% can be taken by banks. Customer interface. NBFC and housing financing companies serve as a single point of interface for the customer, handling loan orientation, documentation, and servicing. The pricing. The ultimate borrower receives a blended interest rate determined by rate of the interest rate of bank and NBFC। ये तो ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस। बैंक कैन क्लेम प्रायोरिटी प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस in respect of share of credit will engage in co-lending, provide loan to conform from existing priority sector lending guidelines। अब देखते हैं, समझ में आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं। बैंक आर परमिटेड टू co-lend with all registered NBFC, including housing finance companies, based on a prior agreement। एग्रीमेंट, ठीक है। Loan sharing. An NBFC are required to retain minimum of 80% share of individual loan on their book, while minimum of 20% share of the individual loan on their book, while 80% while while 80% the remaining while the remaining 80% can be taken by banks. Customer interface. Customer interface. The NBFC and housing finance companies serve as a single point of interface for the customer, handling loan orientation, documentation, and servicing।
Pricing: the ultimate borrower receives a blended interest rate determined by the weight of the interest rate of the bank and the NBFC. Regulatory compliance: banks can claim priority sector status in respect of their fair credit while engaged in co-lending, provide the loan to come from the existing priority sector lending guidelines. प्लीज जो लिखा है उसे सही से एक्सप्लेन कर दो सरल भाषा में। बैंक और एनबीएफसी की पार्टनरशिप: बैंक को यह इजाजत दे दी गई है कि वो सभी रजिस्टर्ड एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ को लैंडिंग को लैंडिंग कर सके, लेकिन ये पार्टनरशिप एक प्रियर एग्रीमेंट के बेसिस पर होती है। यानी दोनों पार्टीज को पहले से ट्राई करना पड़ता है कि कैसे लोन डिस्ट्रीब्यूट होगा। लोन डिस्ट्रीब्यूशन: जब बैंक और एनबीएफसी मिलकर लोन देते हैं तो एनबीएफसी को कम से कम 20% अपनी लोन बुक में रखना पड़ता है, मतलब एनबीएफसी को 20% अपनी तरफ से मैनेज करना पड़ होता है। बाकी 80% लोन बैंक उठाता है और अपनी तरफ से फाइनेंस करता है। कस्टमर इंटरफेस: कस्टमर को लोन लेने के लिए सिर्फ एनबीएफसी हाउस या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। वो कंपनी से लोन की ओरिएंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सर्विसिंग और लोन मेंटेनेंस का पूरा काम हैंडल करती हैं। बैंक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती। प्राइसिंग: जब कस्टमर को लोन मिल जब कस्टमर को लोन मिलता है तो को लैंडिंग है ना, को लैंडिंग मॉडल, तो उसका इंटरेस्ट रेट एक ब्लेंडेड मिला हुआ जुला हुआ रहेगा। ये रेट बैंक और एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट का कॉम्बिनेशन होता है, जब दोनों का शेयर के हिसाब से डिसाइड होता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस: जब बैंक को लैंडिंग करता है तो वह अपने शेयर ऑफ लोन को वह अपने शेयर ऑफ लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन के अंदर कंसीडर कर सकता है। इसका मतलब बैंक अपने लोन के शेयर को प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस क्लेम कर सकता है, जैसे कि इसके लिए एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन दिया जा रहा हो। ये मॉडल सरकार और एनबीएफसी को मिलकर लोन देने की सुविधा देता है, जिसमें का शेयर रिस्क का शेयर रिस्क का शेयर होता है और कस्टमर को लोन मिलने में आसानी होती है। एनबीएफसी एंड हाउसिंग कंपनी कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं और इंटरेस्ट रेट दोनों की तरफ से मिलकर डिसाइड होता है। बैंक को अपना शेयर पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का बेनिफिट मिलता है। सारा पेपर वर्क का काम एनबीएफसी करते हैं, कस्टमर से डील एनबीएफसी करते हैं, बैंक बस पैसा देता है, वो भी एनबीएफसी को। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। को लैंडिंग मॉडल में एनबीएफसी ही कस्टमर से डील करते हैं, सारा पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन का काम वही हैंडल करते हैं। बैंक का रोल बस 80% एनबीएफसी प्रोवाइड करना, बैंक से कस्टमर से क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट करने की मदद करती, क्योंकि एनबीएफसी की लोन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट और लोन सर्विसिंग कुछ मैनेज करती है। थैंक यू। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग: इंडिया इन्वेस्ट इन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लैंडस्केप। मैनेजिंग हिंदी। इंडिया India allow companies to access to specific regulation and government. These borrowing help Indian companies to access fund at competitive rates, diversify their funding source. ECB can come in the form of loan, bonds, and credit line, and are often used for purposes like expanding business operation, financing infrastructure projects, and acquiring technology. ECB landscape investors. External commercial borrowing is a commercial loan raised by eligible resident entities from recognized non-resident entities. Concerning bonds permit parameters such minimum maturity permitted and the use overall cost savings.
Externally, commercial borrowing refer to commercial loans raised by eligible resident entities from recognized non-resident entities conforming to parameters such as minimum maturity, permitted and use, and overall cost ceiling. Eligible borrower entities such as a corporate, including those in service sector, hotel, hospital, software, and non-banking financial companies, are permitted to raise ECBs. Recognized lender should be entities that are resident of SAPS compliant countries. SAPS compliant countries. Maturity period: the maximum amount of ECB which can be raised by a corporate other than those in hotel, hospital, software sector in $750 million or its equivalency during the financial year. Corporates in the service sector while hotel, hospital software are allowed to avail ECB up to $200 million or equivalent into financial year for making foreign currency and or rupee capital expenditure for permission and use. The process of ECB should not be used for acquisition of land. All-in cost ceiling. The all-in cost ceiling is subject to periodic revision by RBI and includes rate of interest, other fees, expenses and charges. And use. ECB can be utilized for purposes such as capital expenditure, refinancing of existing ECBs and specific and use prescribed by RBI. प्लीज इसे सरल भाषा में समझाओ अच्छी तरह से जिससे मजा आ जाए। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक ऐसे लोन को कहा जाता है जो एक एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी जैसे इंडियन कंपनी फॉरेन नॉन रेसिडेंट एंटिटीज से उठाते हैं। ये लोन कुछ स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन के साथ दिए जाते हैं जैसे कि मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड और इनका यूज कैसे होगा। कौन ईसीबी से ले सकता है? कौन कौन एलिजिबल एलिजिबल बोरोवर एंटिटीज ये कॉर्पोरेट एंटिटीज हो सकती हैं जैसे होटल, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन्हें ईसीबी रेट करने की परमिशन मिलती है। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ईसीबी देने वाले एंटिटीज इन कंट्रियों से होने चाहिए जहां फाइनेंशियल एक्शन है। ईसीबी की लिमिट नॉन होटल, नॉन हॉस्पिटल, नॉन सॉफ्टवेयर कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 750 मिलियन यूएसडी रेज कर सकती है। होटल और सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनियां ये सिर्फ $200 मिलियन या उसके इक्वलेंट ईसीबी रेज कर सकती हैं। ईसीबी का यूज कहाँ हो सकता है? ये लिखा हुआ है क्या? ईसीबी का यूज कैपिटल एक्सचेंज जैसे नई मशीनरी खरीदना, बिजनेस एक्सपेंशन करना, पुरानी फैसिलिटी को इम्प्रूव करना, रिफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग लोन मतलब अगर किसी पुराने लोन को रिफाइनेंस करना हो तो इसीलिए यूज हो सकता है। रुपी और फॉरेन करेंसी कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी परमिशन होगी मतलब आप रुपी या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईसीबी का पैसा लैंड लैंड खरीदने में यूज नहीं हो सकता। हाँ, आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि लैंड एक्वाजिशन के लिए ईसीबी यूज नहीं हो सकता। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग आरबीआई टाइम टू टाइम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग को रिवाइज करता है। ये सीलिंग इंटरेस्ट रेट, फीस, एक्सपेंसेस चार्ज इंक्लूड करता है जो लोन लेने वाले को देना पड़ता है। इस तरह ईसीबी एक यूजफुल टूल कंपनी के लिए है जो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, फॉरेन लोन फॉरेन लोन लेना चाहते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल हैं, लिमिट्स भी हैं जो इन्हें फॉलो करनी पड़ती है। मतलब अगर किसी कंपनी को अपना एक्सपेंशन करना है और इसे लैंड लेनी है
तो वो ईसीबी के लोन के थ्रू लैंड में नहीं ले पाएगी। सैलरी देने के लिए ईसीबी के लोन का यूज कर सकते हैं। आरबीआई का मानना है कि भैया अगर बाहर से पैसा उठाया है तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन में लगाओ। ठीक है। ग्लोबल टीम कैपिटल एडुकेशन इज Basel III is an international regulatory framework designed to strengthen bank capital requirements and introduce new regulatory requirements on bank liquidity and leverage. Leverage RBI implementation. Capital to risk weighted ratio. Banks in India are required to maintain minimum CRAR of 9% ongoing basis, which is higher than Basel III minimum requirement of 8%. Composition of capital. Common equity tier 1 minimum 5.5% risk-weighted asset capital, risk-weighted asset. Tier 1 capital minimum of 7% RWA. Total capital Tier 1 plus Tier 2 minimum of 9% RWA. Capital conservation buffer. Banks are required to maintain CCB of 2.5% RWA over and above minimum capital requirement composed of CET1 capital leverage ratio. Leverage ratio: a minimum leverage ratio is prescribed to restrict the buildup of leverage in the banking sector. Liquidity standard: implementation of liquidity coverage ratio and net stable funding ratio to ensure that banks maintain adequate liquidity buffer. Latest amendment: RBI periodically review and amend the Basel III framework to align with international standards and address domestic requirements. Recent amendments focus on enhancing risk sensitivity of capital framework and improving resilience of banks to financial shocks. इसको हिंदी में साधारण भाषा में समझाओ। तो।
देखो, बेसल थ्री अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा है जिसमें बैंक के पूंजीकरण और तरलता आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए इंटर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इंट्रोड्यूस न्यू मजबूत पूंजीकरण और तरलता आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य बैंकों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए उनकी पूंजी संरचना और तरलता मानक को बेहतर बनाना है। रिजर्व बैंक इसे लागू करता है। भारत में बैंकों पर कुछ सख्त सख्त नियम लागू करता है। बेसल थ्री का मुख्य पहलू कैपिटल एडिक्वेसी रेशो पूंजी आरक्षित अनुपात बैंकों के न्यूनतम 9% सीएआर बनाए रखना है। जो बेसल जो बेसल थ्री से 8 से अधिक है। में टायर वन पूंजी 5.5%, टायर टू पूंजी का उपयोग अतिरिक्त सुरक्षा में किया जाता है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर बैंकों को 2.5% की पूंजी रखने की आवश्यकता होती है जो टायर वन पूंजी में शामिल होती है। इसे न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता के ऊपर रखा जाता है। लेवरेज रेशो बैंकों को एक न्यूनतम तरलता अनुपात बनाए रखना होता है ताकि बैंक अत्यधिक ऋण न ले और वित्तीय जोखिम से बचें। तरलता मानक लिक्विडिटी स्टैंडर्ड लिक्विडिटी कवरेज रेशो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास पर्याप्त तरलता पैसा हो ताकि वह अचानक वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। नेट नेट फंडिंग नेट स्टेबल फंडिंग लिखा हुआ है क्या? ये रहा नेट स्टैंडिंग फंडिंग रेशियो लागू करने का उद्देश्य बैंकों के पास लंबी 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 अवधि के लिए स्थिर स्थिर वित्त पोषण भंडार हो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इंश्योर दैट बैंक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड नेट फंडिंग रेशियो। ठीक है। नेट स्टैंडिंग स्टेबल फंडिंग रेशियो। ठीक है। Priority sector lending towards sector lending refers to are their mandate system under which banks are required to lend a specific portion to their to select select sectors that are vital for inclusive growth but underserved by formal financial systems. Sectors covered under PSL agriculture, allied activities, MSME, export credit, education, housing, renewable है ना? टोटल 40%, PSL domestic commercial bank 40% of credit of balance here is higher, is higher. 2 मिनट रुको agriculture 18%, institutional bank, foreign bank separate phase a number of separate phase that target based on their branch. That national lending certificate banks with surplus PSL can keep are tradable PSL, ELCS banking foreign certainly. Weaker section bank must allot 40% of CNBC adjustment net net bank credit to following weaker section. National rural livelihood income, national urban livelihood, self-employed for rehabilitation manual standard artisan credit limited to one. Self-help group, individual member of
इसमें लिखा हुआ है कि वीकर सेक्शन एज पर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन बैंक मस्ट allocate 12% of A and B C to following weaker section। वीकर सेक्शन, इसमें पीएसएल से अलग लोन दिया जाता है या पीएसएल जितना ही दिया जाता है, या पीएसएल में ये जोड़ा गया है 12% या फिर ये पीएसएल से अलग है? अच्छा, ठीक है, ये भी हो गया, पढ़ना भी हो गया। ये मैं ये हमें रेडी कर रहे हैं हम तो किसके लिए, ये रेडी कर रहे हैं हम उसके लिए, किसके लिए, यूपीएससी थंडरबोल्ट के लिए। जब यूपीएससी थंडरबोल्ट के लेक्चर आप सुनोगे ना, पागल हो जाओगे। कोई आदमी इतना गंदा कैसे बना सकता है? चलो, ये मैंने कल पढ़ा था, ये 19 वाला इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पढ़ा। यूपीएससी थंडरबोल्ट के ऐसे लेक्चर बनेंगे कि 2 घंटे के अंदर पूरी कॉपी रिवाइज, इकोन आर, और पॉलिटी के भी ऐसे लेक्चर बनेंगे कि 2 घंटे के अंदर पूरी पॉलिसी रिवाइज, इन्वायरमेंट के बनेंगे कि 2 घंटे के अंदर पूरी इन्वायरमेंट रिवाइज, और साइंस के बनेंगे 2 घंटे के अंदर पूरी साइंस रिवाइज, एंड देन तुम्हारा ज्योग्राफी के भी ऐसे बनेंगे 2 घंटे के अंदर पूरी ज्योग्राफी रिवाइज। ठीक है। अब यूपीएससी पूछता है, विद रेफरेंस टू सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई ये मेरे लिए मॉक टेस्ट ही है, ये मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, है ना। विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CSR rules specify that expenditure that benefit company directly in future। ये अंतर है, कल पढ़ा था ये हमने। कि पहला इसने पूछा कि आई की कंपनी अगर अपने बंदों के लिए कुछ काम करती है तो वो सीएसआर में शामिल नहीं होगा। सही बात है, सीएसआर की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है यार। 500 1000 बार, 2000 बार की पढ़ा होगा, सीएसआर की लिमिट है। वाली बात है ना। यूपीएससी में मेरा मानना है, अब मेरा मानना है कि जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत मिनिमल नॉलेज है। ज़्यादा नहीं नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आपको लिए बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है। थोड़ी सी नॉलेज है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं यूपीएससी में हमसे 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा था। एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट 2018 रूल, no notice of termination employment shall be necessary in case of temporary working होना। भाई ऐसा नोटिस सरकार पास करेगी, सरकार की हिम्मत है। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी, नो नोटिस टर्मिनेशन। इफ इफ रूल फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, if if rule for fixed term employment are implemented, it become easier for some companies to lay off workers। if rules for fixed term employment, neither the answer is no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workmen। Translate in Hindi। स्थायी करने पानी रोजगार नौकरी के कितना आवश्यक नहीं है। ज्ञान गलत है ना। If rules for fixed term employment are implemented, it become easier for the firm and companies to lay off workers। इसका ट्रांसलेट करो हिंदी में।
यदि स्थायी अवधि के रोजगार के नियम को लागू किया जाता है तो कंपनी के लिए स्थायी अवधि के रोजगार को लागू किया जाता है तो कंपनी उपक्रमों के लिए श्रमिकों को हटाना आसान हो जाएगा। यूपीएससी सिविल सर्विस ने एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में, एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट 2018 रूल। क्या तुम बता सकते हो वो क्वेश्चन क्या था? सर्च करके बता दो कहीं से। अरे यार, मतलब कि अस्थायी कामगार को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो किसी भी कंपनी को अपने लेबर को निकालने में आसानी होगी। Which of the following statement is correct with reference to SEMA? The foreign exchange under SEMA policy. ठीक है। As per rule of 21 BS company CSR policy 2014, any activity benefits employees of companies for undertaking normal course of business shall not be considered as meeting threshold shall stand at least 2% of average profit. Last three financial years CSR activities. Insolvency and bankruptcy court to consolidate and amend law-related reorganization and insolvency regulation of corporate persons, partnership firms and individual time bond members for maximization asset value, promotion entrepreneurship, availability of credit and balancing interests of all stakeholders. ठीक है। key feature applicability company limited liability partnership firms individual regulatory authority insolvency bankruptcy board insolvency resolution time bond process 180 days for corporate insolvency resolution extendable by 90 days moratorium period comments upon issue. Moratorium period comments upon initiation providing a legal stay on claim.
moratorium period, come mentions upon initiation, providing a legal story on claims. Insolvency professional license, professional managed by resolution process, control assets and oversee operation during IRP. IRP, insolvency process. Add just adjusting authorities, NLT, and National Company Law Tribunal for companies, LLPs, debt recovery tribunal for individuals and partnership firms. Priority claim, establish hierarchy for distributing proceeds. इसमें कुछ करना है, तो क्या लगा क्या था वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड से रिलेटेड है मोराटोरियम पीरियड कम मेंशन्स upon invitation providing a legal stay on claim. Insolvency professionals, licensed professional manage the resolution process, control asset and oversee operation during IRP. Add adjudicating authorities, National Company Law Tribunal for companies, LLCs, debt recovery tribunal for individual and partnership firms. Priority of claims, establish a hierarchy for distributing proceeds from sale of assets, prioritizing secured creditors, workmen due and unpaid due to employees. Amendment and update. 2019 amendment introduced a mandatory upper limit of 330 days for completion of resolution process, including legislation period, litigation period. Litigation period. Pre-packaged insolvency resolution process 2021 aimed at MSME for faster resolution with minimal disruption. In fact, enhanced ease of doing business in India by providing a clear time-bound process for insolvency resolution, improved recovery rates for creditors, and reduced non-performing assets in banking sector. इसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो और समझाओ बढ़िया तरीके से कि संभावित पॉइंट जो हमने सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं मॉडल टाइम पीरियड जब किसी कंपनी या इंडिविजुअल को इंसॉल्वेंसी दिलवाने का प्रोसेस शुरू होता है तो एक मॉडल टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है इसका मतलब है कि जब किसी भी क्रेडिटर जो पैसे लेने वाला है
वो अपने ड्यू या क्लेम लेने के लिए लीगल एक्शन लेने का हक नहीं होता। एक तरफ उसका क्लेम रुक जाता है, मतलब मॉरेटोरियम पीरियड पहले करता है उसमें, कौन कैन प्रोवाइड लीगल स्पेस टू क्लेम, ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है, जो कंपनी के एसेट को मैनेज करता है और उसकी ऑपरेशन को देखते हुए रिजोल्यूशन प्रोसेस को चाहता है। ये प्रोफेशनल कंपनी को रिजोल्यूशन प्रोसेस को पूरी सही तरीके से चलाने में मदद करता है। जुडिशल अथॉरिटी, नेशनल कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल कंपनी और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केसों को हैंडल करता है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में होते हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल इन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स को केसेस केसेस को डील करता है जो दिवाला दिवाला डिक्लेयर हो चुके हैं। प्रियोरिटी प्रियोरिटी ऑफ क्लेम, जब किसी कंपनी के एसेट बेचे जाते हैं तो क्लेम का प्रायोरिटी डिसाइड होता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर को पैसा मिलेगा, जैसे बैंक, फिर वर्कमैन को प्रायोरिटी मिलेगी। एम्प्लॉई के अनपेड ड्यूज भी पहले क्लियर किए जाते हैं। 2019 का अमेंडमेंट, 2019 में कुछ चेंज किया गया, उसमें रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट तरीके से मैक्सिमम टाइम लिमिट रखा गया, 330 दिन का होता है, इंक्लूडिंग लिटिगेशन पीरियड। प्री पैकेज इंश्योरेंस रिजोल्यूशन 2021 में एमएसएमई को प्री पैकेज इंश्योरेंस रिजोल्यूशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका एम है कि उनका इंश्योरेंस जल्दी आसानी से हो जाए बिना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के। आईबीसी इंसॉल्वेंसी इम्पैक्ट, ठीक है, प्रोसेस बिजनेस इंडिविजुअल के सकते हैं। नेशनल कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का काम थोड़ा समझ में नहीं आया, वो समझा दो। ट्रिब्यूनल का एनसीएलटी एक ट्रिब्यूनल है जो कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स के इंसॉल्वेंसी केसेस को हैंडल करता है। जब कोई कंपनी या एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपनी पेमेंट नहीं कर पाती या दिवालिया डिक्लेयर करना चाहती है, तो इनका केस एनसीएलटी के पास जाता है। एनसीएलटी रिजोल्यूशन प्रोसेस को मैनेज करता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी को कैसा चलाया जाएगा, या तो रिस्ट्रक्चर करवाना या बेचना, ताकि क्रेडिटर को पैसा मिल जाए। ये ट्रिब्यूनल कंपनी और एलएलपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो बिजनेस फॉर्म में है। डेट 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 रिकवर डेट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक ट्रिब्यूनल है जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म के इंसॉल्वेंसी केसेस को हैंडल करता है। जब कोई इंडिविजुअल फर्म, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें पत्नी को पत्नी को तरफ से उन्हीं को प्रोफेशनल पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे घर, पर्सनल बिजनेस को डेट के प्रोडक्ट रिटायरमेंट स्ट्रक्चर पार्टनरशिप के बीच का होता है। तो अगर एक दोस्त अपने बिजनेस शुरू करते हैं अगर दो दोस्त बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्होंने एलएलपी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन किया है, तो अगर बिजनेस का लॉस होता है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए कर्ज के लिए बेचा नहीं जा सकता। उनका लॉस उन्होंने बिजनेस में डाला है, उतना ही होगा। एलएलपी ऐसी ऐसी बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब
उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का बिजनेस डेट से प्रोटेक्शन मिलती है। ये तो बढ़िया है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनसीआरएफ स्लैब 2 करोड़ रुपीज फाइन ऑन Deloitte Haskins for lapse reveal audit established constitute under Section Companies Act to become operational 2018 oversees quality of corporate financial reporting, ensuring adherence in accounting auditing standards and composition. Chairman appointed by central government. Member consists of experts in accountancy, audit, finance, law, and other related fields. Sanction and duties recommended. Accounting and auditing policies and standards to be adopted by companies and approval by central government. Monitor and enforce compliance with accounting and auditing standard oversees quality service of professionals associated ensuring compliance such as standards and implement. Investigate matter professional misconduct by chartered accountants or audit firms that prescribe class of company and impose penalties can investigate either suo motu or on a request made by central government has some power and civil court under the CRPC code of by jurisdiction cover all listed companies and large unlisted public companies exceed certain threshold. Authority to investigate professional misconduct committed by order and above entities. ठीक है सिंपल सी बात है बस आसान सी है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये केवल कंपनी के ऑडिटिंग और अकाउंटेंट से जुड़े हुए काम देखती है और उनका वो करती है मतलब उनका एक्शन लेती है अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो है ना। मतलब ये सीए को मतलब ये सीए जो सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको देखती है कि ये ज़्यादा तेज ना चले। क्या ये सही है या गलत है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग that is auditing action against CA crime purpose integrity to financial statement to correct activity मल्होत्रा जाएगा जेल में। Sustainable Finance and Green Taxonomy by SEBI and RBI. Sustainable Finance and Green Taxonomy by SEBI and RBI to get green growth. Sustainable finance refer to financial service integrated environment and social and governance criteria into business or investment decisions for sustainable outcomes. ये करने के बाद ही होगा। Sustainable finance Sustainable Finance and Green Taxonomy by SEBI and RBI. Sustainable finance refer to financial service integrated environmental and social governance criteria into business or investment decisions for sustainable outcomes. SEBI initiative Green Debt Security Guideline 2017 defined criteria for issuing green bond in India, specifying eligible projects such as renewable energy, clean transportation, and sustainable water management. Business responsibility and sustainability reporting 2021 mandated top 1,000 companies listed entities by company capitalization to provide ESG disclosure, enhancing transparency and encouraging responsibility business conduct. RBI initiative discussion paper on climate risk and sustainable finance 2022 outlined regulatory expectations from bank and financial institutions regarding the integration of climate-related risks into governance strategy and risk management framework. Sovereign Green Bond Framework
facilitated the issuance of sovereign green bonds to mobilize resources for green infrastructure projects. प्लीज इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, अच्छी तरह से बता दो सरल भाषा में। अच्छा तो सेबी ने 2021 में एक नई नीति शुरू की जिसमें टॉप 1000 कंपनियों को जो उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाली हैं अपनी पर्यावरण सामाजिक जानकारी खुलासा करना अनिवार्य कदम है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को जुटाया जा सके, जो हाथ में ला सके। ठीक है, 1000 कंपनियों के लिए है ना। अब देख लेते हैं डिस्कशन गवर्नेंस से मिलते हैं। थैंक यू।